congratulations. That's been a long, long wait, and I'm sure you must be excited. Your film is releasing on the 25th of August now. What do you have to say? What memories do you have with it? Memories is like, it was wonderful working with Bapida. He was so encouraging. Um, we had some great times together. He was like a friend. He used to share his Bengali sweets with us. He was very encouraging, as he basically, the memories I have with him is that he used to encourage the newcomers, and it was very, very easy to speak to him and just pick up the phone and call him, and he would always be there for you. That's So, that. आपने film में extensive, you got a very, very, I think, for a lead actor, this film is like a dream because we've seen It is. the trailer and you've done extremely well. What do you have to say about the whole film, because it was a different subject, lovely songs? It was a great experience working in the film, and it was fun to work because the songs are so good. Dada gave the best music, I think, for this, and he sung himself. He sung a couple of songs himself. He's even performed in the film. So it was a great experience. Apache Indian, Boy George. Yeah, I mean, they are like all legends, and so is Dada. So it was wonderful working with them. So कुछ ऐसी memory से आप share करना चाहेंगे film shoot की, Shtabdi Roy is there, Poonam Jhawar is there with you, Shweta ma'am. while shooting, anything that you would like to share with the audience now? We're going to be watching the film after so many years, times have changed, things have changed. I know. So the memories was, in fact, the interaction with Apache was great because he was a superstar then. In fact, he's even famous now. But Apache was very humble, and definitely he came on the sets, and the vibrations were like amazing, and he was like, he comforted us all. We had worked with him. I had a song with him. We had some scenes together. But such a great star at that time, even now. But yeah, he really comforted us all. So कुछ एक ऐसा कुछ incident आप share करना चाहेंगे while shooting with Jayaji or with any of the crews, or your own that you would like us to know? Incident. Okay, so we were shooting at in Sikkim, and Shangu Lake, I think. Yeah, and so on our way back, we packed up. It was snowing, and there was an avalanche, and luckily we got saved. And the car in front of us, in which I think there was Manmoji and Birbal, the actors, we could hear some sound coming from the snow. So me and Inayaji were like, कुछ आवाज़ें आ रही हैं, let's just try and help. So we start, getting the snow off the car, and then we see two faces, and that was Manmoji and Birbal. So luckily we were saved, and then the army came there. It helped us. Dada was coming in the back car. So in fact, the army came with the ropes and got us down. And then they gave us a shelter to stay, and that was the coldest night. I was freezing. We didn't have so much of clothes. We were not expecting -7 and -10 degrees, but the army was a great help. So that's one memory I can never forget. अब फिल्म इतने सालों बाद रिलीज हुई है, इसका क्या आप मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को? What are your expectations? How is the family reacting? I'm sure they must be excited. Everybody's, we are like really positive about the film, and we are hoping, every person hopes when he wakes up in the morning, today's a great day, today's a good day. So I'm just expecting, give your love for Bapida. It was his last wish for this film to release, and he made it with a lot of passion, he made it with a lot of love, and that's it, just love him. Siddharth, what is unusual about this love story? What is unusual? I think all love stories are unusual. Because there can't be a usual love story. So unusual is, it's a love triangle, and I'm sure you're going to watch it now, so you will get to see what I'm talking about. But
every film in Indian cinema, they want to make it something different, and this is a bit of a different film. Obviously, adaptations from here and there, but I'm sure you would want to watch it now, and then you can tell me what was so unusual. बप्पी दा का म्यूजिक है, बप्पी दा खुद भी है फिल्म में, तो म्यूजिक कैसा है और क्या यूएसपी रहेगी फिल्म की, आपको लगता है बप्पी दा के होने से? दादा का म्यूज़िक है तो फिर कैसा, मतलब आप सोच ही सकते हो कि कितना अच्छा होगा. एंड ही यूज्ड टू कनेक्ट विद द मासेस ऑल्सो. ये डिस्को किंग रह चुके हैं और क्लासिकल भी इतना किया है इन्होंने. इनफैक्ट इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का म्यूज़िक ही चेंज किया है बाय गेटिंग डिस्को. सो आई थिंक दादा इज़ काइंड ऑफ इंटरनेशनल फेम बिकॉज ही इज़ फेमस ऑल ओवर. Right from Jimmy Jimmy to his songs like Chalte Chalte from that film. And so Dada has been a versatile musician and he's famous worldwide. एक वक्त था बॉलीवुड में खासकर लव स्टोरीज ही बनती थी, सक्सेस का फॉर्मूला था, पर अब वक्त पूरी तरह से बदल चुका है. लोग बहुत नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं. आपको लगता है ऐसे दौर में लव स्टोरी आज की जनरेशन पसंद करेगी? Of course, love story तो evergreen होती है. हर मतलब even the teenagers पहले तो they fall in love, and I don't think anything is stronger than love. War तो चलो ठीक है, झगड़ा तो ठीक है, but I think love conquers it all. आपके कैरेक्टर के बारे में कुछ रोशनी डालेंगे? Character okay, तो normal guy, he has some issues, कुछ problems, but जो भी हैं वही romantic hero. I think you should watch the film for this. सबसे पहले तो मैं रब का शुक्रगुजार हूँ कि ये फिल्म आ रही है, और सबसे दूसरी बात ये है कि दादा मेरे हमेशा फेवरेट रहे हैं और मैं दादा का फेवरेट रहा हूँ. अब मैं दादा का फेवरेट क्यों हूँ, आई जस्ट डिस्क्लोज लिटिल बिट. माय गुरु मिस्टर बापू, वो मेड मोहब्बत, मेरा धर्म, दिल जला, प्रेम प्रतिज्ञा, प्यारी बहना, एंड आई वॉज एसोसिएट विथ हिम, एंड दादा का ही म्यूज़िक था. तो दादा के साथ मेरी एक रैपो था. दादा ने मुझे प्रॉमिस किया था जब मैंने प्रकाश मेहरा जी की फ़िल्म साइन की थी 94 में, उसके बाद में उन्होंने कहा था जब मैं फ़िल्म बनाऊंगा तो आपको ही लूँगा. तो दादा ने मेरे साथ बैठ के स्क्रिप्ट शेयर किया, फिर हम लोगों ने उस पर काम किया. हम लोग लोकेशन देखने गए, लंदन, सिक्किम वगैरह. जब हीरो की बात आई तो मैंने कहा कि सिद्धार्थ इज़ माई गुड फ्रेंड, सिद्धार्थ से बेटर चॉइस नहीं हो सकती है, एंड इस तरह हमने इस फिल्म की शुरुआत की. जब कोई बहुत बड़े लेवल पे हुई, we have जी. international singers like Apache, Indian Boy George, जो बहुत rarely हिंदी फिल्म्स में कभी हमने देखे हैं. जी. Given their lended their voice. So जो म्यूजिक का सेटअप था बहुत बड़ा सेटअप है, ब्यूटीफुल सॉन्ग्स. जी. So क्या रहा दादा का, क्या टेक रहा while making the music? मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बताना चाहता, आई वॉज प्रेजेंट इन लंदन. जब दादा गाना रिकॉर्ड कर रहे थे तो मुझे लगा कि महबूब स्टूडियो की तरह बहुत बड़ा स्टूडियो होगा और वहाँ पर बॉयजर साहब का गाना रिकॉर्ड होगा और अपाची इंडियन का गाना रिकॉर्ड होगा. लेकिन जब हम पहुँचे तो 10 बाय 12 का एक कमरा था, सिर्फ दादा थे और दादा के बेटे जो पप्पा थे और सिर्फ बॉयजॉर्ज अपाची थे. इन चारों ने मिलकर पूरा दादा ने कंपोज करके गाना लाए थे मुंबई से, और बॉयजॉर्ज सो नाइस, और आए 2 ही टेक में गाना उन्होंने ओके कर दिया. और वो दादा को इतना मानते हैं, हम शायद इंडियन ये नहीं जानते हैं कि फ़ॉरेन में दादा की कितनी वैल्यू है. इसीलिए से पहली पिक्चर में भी समंता फॉक्स को लाया था उन्होंने, और इस फिल्म में भी अपाची इंडियन एंड बॉयजॉर्ज को लाया है. सर, जो लव स्टोरी दीवानों की जो है, इसमें किस तरह से गाना रहेगा, या रोमांटिक गाना रहेगा या सैड सॉन्ग रहेगा, इसके बारे में बताइए. देखिए क्या है, लव तो बाप बेटी के साथ होता है, भाई भाई के साथ होता है, माँ बेटों के साथ होता है, हस्बैंड वाइफ के साथ होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ होता है. प्यार तो है, प्यार है तो जीवन है, प्यार नहीं तो जीवन नहीं. तो लव स्टोरी दीवानों की में भी कुछ दीवाने ऐसे हैं जिनकी ये लव स्टोरी है. और ये फिल्म सिर्फ रोमांटिक ही नहीं बल्कि बहुत ही टीयर जरकर इमोशनल फिल्म है. एंड जो जया प्रदा जी ने रोल किया है सिद्धार्थ के साथ में, उनकी जो रैपो है, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो केमिस्ट्री है, दैट वाज फैंटास्टिक. आप देखेंगे फिल्म तो आपको पता चलेगा. सर, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा सर लव स्टोरी दीवानों? सर, एक्सपीरियंस का जहाँ तक ताल्लुक है, आई हैव बीन वर्किंग सिंस लास्ट डेकेड. आई वर्क विद राकेश रोशन सर, विद खुदगर्स, खुनबरी माम, किशन कन्हैया, काला बाजार, खेल किंग अंकल. I worked with Mukul Anand sir, with Khuda Gawai as associate director, and I made this film. So every step is a good step, and Bappi Da and Bappi Da's entire family is a fantastic.
ऐसा लगने नहीं दिया, एक चीज़ में भी उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया। मैंने जो चाहा वो मुझे मिला, बेस्ट कैमरा, बेस्ट फोटोग्राफर, बेस्ट एडिटर। माई एडिटर इज़ गेटिंग अ 2 फिल्म फेयर अवार्ड, मिस्टर संजय वर्मा फ्रॉम खून भरी मांग एंड किशन कन्हैया, और माई कैमरा मैन इज़ फ्रॉम यशराज फिल्म। सर टाइटल यही क्यों रखा गया, लव स्टोरी दीवानों की? सर इसमें कुछ दीवानापन भी है ना। दीवानापन ऐसा होता है जिसको डिस्क्लोज नहीं, बल्कि देखने से पता चलेगा कि दीवानापन है या नहीं। और लव करने वाले, प्यार करने वाले तो दीवाने होते हैं। जब तक दीवानगी नहीं होगी तो प्यार कहाँ से आएगा साहब। सर आपसे क्वेश्चन है किस तरह से आप जो है इसमें आपको अच्छा लगता है, किस तरह से आप दीवाना होते हैं इसमें? सर देखिए, जहाँ तक काम का ताल्लुक है तो इमोशन हर एक में भरा हुआ है। आप एक्शन फिल्म भी देख लीजिए, यू सी पुष्पा, यू सी अनदर फिल्म्स, यू सी गदर, सी सब फिल्मों के अंदर क्या है, लव है, इमोशन है। तो बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, इमोशन तो पहले चाहिए। इमोशन के बगैर यू कैन नॉट मूव, यू नेवर बी लाइक अ ह्यूमन बीइंग। सिद्धार्थ, आपका कैसे रहा जर्नी Journey? with the director while making of the film? Oh, we were very easy to communicate, and he used to explain the scenes, and he knew the pulse of the film, so it was very easy to communicate with Dinaji, because we were friends also, so बहुत अच्छा रहा, बहुत comfortable रहा. जयाप्रदा जी भी Oh, I'm in awe of her. She's so pretty. The minute I used to see her, I was like, oh my God, this is beauty. Yeah, but she happened to be my sister. yeah. So how is anything that you like? Oh, she's so sweet, so down to earth. She's like very friendly. She makes you comfortable. Even if you're a bit nervous, then she'll comfort you and she'll be like, come on, let's rehearse and let's do the scene. You know, she's very sweet, very humble. Any message that you would like to give to the audience? Message is, yeah, please shower your love on Bappida's film, his music, and the disco king as we all know him as. और हम एक ही चीज़ कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में टू द ऑडियंस, कि ये फिल्म है जो बप्पीदा ने बहुत दिल से बनाई है। हम चाहते हैं कि आप थिएटर तक आएँ और इस फिल्म को देखें, तो हमें बहुत खुशी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसमें कितने गाने हैं सर? फिल्म में है 7 सॉन्ग्स, फ्रॉम द टाइटल टू द लास्ट कार्ड तक का, एंड यू विल गेट अ डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजिक। दादा इज़ नॉट ओनली द डिस्को किंग, दादा इज़ द मेलोडी किंग ऑल्सो। सी चुन लिया है लाखों में जिसे आपकी वो सूरत है, दीवाना हूँ मैं तेरा, गुड्डी गुड्डी मेम साहब, मैं कपड़े बदल कर जाऊँ कहाँ। सी लिरिकल इतना अच्छा है मामला, और फिल्म स्क्रिप्ट के साथ में मर्ज होती है, और जिसको गाने में भी काफ़ी कुमार शानू साहब, अलका याग्निक, रेमा लहरी, बप्पा लहरी, अरुण बख्शी और उदित नारायण सब लोगों ने गाया है। आपको बहुत अच्छा लगेगा। और गाने अलग-अलग राइटर ने लिखे हैं? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, क्या Thank you so much. Govind ji and Reema, many congratulations. Firstly, all kudos to you for releasing Bappida's film, जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था. As family आप लोग आगे आए और you made efforts to release the film, जो बहुत rarely देखा गया है. क्या कहेंगे गोविंद जी, आपसे शुरुआत करेंगे. मैं ये दादा का सपना था, किसी कारण से रिलीज नहीं हो पाई थी। कोविड में भी हम लोग पहले इसका प्लान कर रिलीज़ करते हैं, पर ऐसा हादसा हुआ कि मतलब उसका तो कोई वो नहीं है। फिर हम लोगों ने सोचा कि कैसे भी इसको रिलीज़ करना है। फैमिली का एक प्रोजेक्ट था, दादा की बहुत यादें जुड़ी थी इसमें, और मतलब बहुत लोगों की यादें, बहुत लोग साथ में हैं इसमें, तो इसलिए मैंने एक प्लान किया कि कैसे भी SRG फिल्म जो हमने बनाया अभी प्रोडक्शन जो पहला फिल्म हम दादा वाला फिल्म रिलीज़ करेंगे, तो इसलिए इसको स्टार्ट किया। Reema, आज first half emotional है, we can all see that. I'm sure we all miss Dada always. How excited are you today? उनकी dream realize हो रही है, उनका project release हो रहा है 2024 all over India, all over वर्ल्ड। यस वेल, तो नमस्कार। आज बहुत ही इमोशनल डे भी है और बहुत ही खुशी का दिन भी है कि डैडी का बहुत मेहनत है ये पिक्चर के पीछे। उनका म्यूज़िक बोलो, आप शूटिंग बोलो, और इतने दिन का मेहनत आज हम लोगों को दिखा रहे हैं। एंटरटेनमेंट, ही इज़ अ गॉड ऑफ एंटरटेनमेंट, और बहुत ही मेहनत से उन्होंने ये पिक्चर बनाया था। और फर्स्ट टाइम तो रॉक डांस में समांथा फॉक्स को लाए थे, पर ये पिक्चर इतनी स्पेशल है क्योंकि 2 इंटरनेशनल स्टार्स है, अपाचे इंडियन एंड बॉय जॉर्ज, जो दादा ऑलवेज अहेड ऑफ टाइम थे।
और वो ऑलवेज कुछ नयापन लाते थे अपने म्यूज़िक में, बोलिए अपने मूवीज़, अपने ट्रेलर्स, अपने म्यूज़िक वीडियोस, एल्बम्स में। ही वॉज अ डिफरेंट लेवल ऑफ पर्सन एकदम ही। और अपने ये पिक्चर में भी उन्होंने बॉय जॉर्ज और अपाची इंडियन को लाया फॉर डिफरेंट एक अलग नयापन लाया ये पिक्चर में। और ओ चाची जो अपाची इंडियन ने गाया है गेस्ट अपीयरेंस, एंड बॉय जॉर्ज। और ये पिक्चर खाली सिक्किम और गैंगटॉक और इंडिया में नहीं पिक्चराइज हुआ है, ये लंदन में भी हुआ है। तो बहुत जगह में ये शूट हुई है, हाँ शूट किए हैं। और बेसिकली रोमांटिक, सिंपल रोमांटिक म्यूज़िकल है। म्यूज़िक बहुत स्ट्रॉन्ग है इस पिक्चर का। और दादा ने खुद गाया है, अलका दीदी ने गाया है, और अलका दीदी, दादा और सुनीति, एंड बॉय जॉर्ज ऑफ कोर्स अपाची इंडियन, तो शानू कुमार शानू जी। तो बहुत ही अच्छा मूवी है, सिंपल मूवी है, पर कुछ सर्कमस्टेंसेस के लिए हम लोग रिलीज़ नहीं कर पाए तभी, क्योंकि बहुत कुछ आया गया एंड चेंजेस, लाइफ इज़ फुल ऑफ चेंजेस, रोलर कोस्टर है। जब समय आता है जब वही और कोविड के टाइम में भी, जब लॉकडाउन के टाइम में भी दादा ने डिस्कस करते थे कि गोविंद ये पिक्चर चलो हम लोग रिलीज़ करते हैं, कैसे भी करके मेरे को रिलीज़ करना है, मेरे इतने अच्छे म्यूज़िक लोग देखे, उसको अच्छा एंटरटेन करे लोगों को। तो उसके बाद तो ऐसा बड़ा मिसअप हो गया कि हमने कभी सोचा ही नहीं कि ये दिन इतना जल्दी आ जाएगा। तो अभी भगवान की मर्ज़ी है एनीवे। तो हमने सोचा कि अभी जब थोड़ा बहुत सब कुछ ठीक ठाक है तो वाई नॉट हम रिलीज़ करें, और दादा के ड्रीम्स को, दादा के अधूरे सपने को हम पूरा करें। कोई ऐसा वाक्य है दादा का शेयर करना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर जो? हाँ वाक्य बहुत है, हाँ बहुत सारे वाक्य हैं। दादा इस फिल्म को लेकर क्या? मैं तो पूरे शूटिंग में ही थी, क्योंकि मैं बहुत यंग थी तभी, तो आई वॉज इनटू द प्रोडक्शन, और दादा के साथ ही थी, हर एक सीन में मैं काम कर रही थी। आई वॉज सीइंग द प्रोडक्शन, आई वॉज रनिंग अराउंड, यू नो हाउ इट्स अ हार्ड वर्क टू मेक अ मूवी। तो इसमें उनका बेसिकली ये था कि उनका म्यूज़िक जो उनका मेन पावर है ये पिक्चर का, और ऑफ कोर्स द स्टोरी में भी उनका बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने स्टोरी भी बहुत ही इमोशन, आप जब मूवी देखोगे तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं इमोशंस आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस मूवी। और म्यूज़िक बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड आइटम सॉन्ग्स है 2, और एक अपाची और बॉय जॉर्ज का। दादा ने खुद भी एक प्रमोशनल वीडियो किया था, गाएंगे, वो गा रहे हैं, आप देखोगे वो मूवी में, रोलिंग टाइटल में है। दादा का जो दिल है डिस्को वाला कहीं पे है? हाँ है ना, क्यों नहीं, अरे भाई वो तो है ही। पहचान है, जो जिंदगी है। ऑफ कोर्स जैसे वो बॉय जॉर्ज का गाना है, रात रात भर नींद ना आई, महबूबा की याद सताए। So he starts with a doha, with a romantic, and when will you learn from your tears and your sufferings, Boy George का गाना। तो he brought the doha folk, the mellow, the Indian folk जिसको हम बोल सूफियाना, with Boy George को लाए। तो आप जब सुनोगे गाना आपको लगेगा कि क्या दादा का क्रिएशन, और कैसे वो लाए इतने सुंदर तरीके से एकदम। आपके साथ दादा की मेमोरीज जब वो हमेशा चाहते थे ये फिल्म जल्दी रिलीज हो। मेरे साथ दादा का मेमोरी हमेशा ही, जब भी बैठते थे मैं दादा तो कुछ ना कुछ नए प्लान करते थे ऑलवेज। ऐसा भी मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी मैं जैसे ये फिल्म से रिलेटेड दादा बोलते हैं गोविंद जी बहुत पहले उन्होंने एक फिल्म बनाया है एसवी फिल्म में उन्होंने, और रिलीज हुई है रॉक एसबी फिल्म जो बनाया था समंथा फॉक्स गोविंद का, उसमें एसवी फिल्म मतलब एस मुखर्जी साहब की वाइफ मतलब और दादा की मदर, तो दोनों के नाम से एसवी मुखर्जी एसवी फिल्म बनाया। तो उनकी बहुत इच्छा रहती, पर दादा इतने बिजी रहते थे कि फिल्म बनाने में टाइम नहीं दे पाते थे। ये पहला फिल्म हिट हुआ, अच्छा हुआ, पर उन्होंने प्लान किया दूसरा फिल्म, पर किसी कारण से कहीं ना कहीं तो बोले यार गोविंद मेरी इच्छा है पर मैं इसको कंप्लीट नहीं हो पाती है कोई भी। तो बोला अभी गोविंद तुम आ गए तो अपन अब सब कंप्लीट करते हैं। तो फिर भी किसी कारण से होता है ना डिले, फिर भी बहुत सारे प्रोजेक्ट किए दादा ने साथ में, जैसे फिल्म स्टार्ट किए, बहुत लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए बहुत काम करने की इच्छा रखते थे। ये सारी बहुत सारी यादें हैं। यू नो लाइक जैसे दिन निकलते गए, देन एक के बाद एक हिट्स एंड हिज सिंगिंग एंड शोज एंड ऑल, तो उतना, देन कोविड आ गया तो वो एक है, देन उनका तबीयत थोड़ा हेल्थ डिटोरेट हो गया तो विवाह फिल्म में जयाप्रदा शादी रॉय, हाँ जी। सिद्धार्थ धवन है,
Yes, yes. Singers are all, Alka ji is there. Yes, Kumar Sanu. Yes. So, for its time, then, one of the biggest projects. So, what are your emotions today? As started, both of you together have taken this initiative to release it. वेल फर्स्ट इमोशन तो ये था कि ये पिक्चर तो ज़रूर हम रिलीज़ करते हैं, आज नहीं तो कल, पर दादा नहीं रहेंगे साथ, ये कभी नहीं हम लोगों ने सोचा भी नहीं। इतनी जल्द ये दिन हम लोग को देखना पड़ेगा एंड ही विल लीव अस एंड गो सो सून। ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम रिलीज़ करेंगे, पर जिनका सब कुछ है, एक एक चीज़ उनका है, वो ही नहीं रहेंगे। सो दिस इज़ व्हाट लाइफ इज़ ऑल अबाउट एंड वी शुड लर्न फ्रॉम सच थिंग्स दैट दिस इज़ व्हाट इट इज़। मतलब ये फर्स्ट इमोशन है कि वी रिग्रेट, ही इज़ देयर, हमारे साथी है, हम उनका आशीर्वाद है साथ में, हमारे साथी है। पर एक होता है ना, एक उनका प्रेजेंस इज इक्वल टू क्रोर्स ऑफ पीपल, ही इज़ हिज प्रेजेंस नोबडी कैन टेक, कोई ले नहीं सकता उनका जगह। एंड सेकंड है कि दैट उन्होंने बहुत मेहनत किया है ये पिक्चर में, और मतलब ही इज़ अ किंग, वो राजा जैसी रॉयल लाइफ लीड किए हैं, पर एज अ प्रोड्यूसर शूटिंग में जाना, शूटिंग के ताम झाम झेलना, देन सेट देखना, देन कोई कुछ बोलता है, ही इज़ नॉट यूज टू दैट ना, ज़्यादा कभी हुए तो यूज टू नहीं थे, तो ऑफ कोर्स वो सब बहुत मेहनत, टेंशन बहुत लिया है, बट ही वॉज वेरी काम, ही नेवर शोड कोई, ही वॉज अ वेरी काम पर्सन और सब कुछ अच्छे से संभाल लेते थे। स्टारकास्ट की बात करें, कौन-कौन है इसमें? इसमें जय प्रदा जी है एंड सिद्धार्थ धवन एंड बॉय जॉर्ज, अपाची इंडियन, शताब्दी रॉय, राजेश जौहरी, पूनम झावर, और ये सब भाई बहन इमोशनल स्टोरी है, बहुत ही इमोशनल एंड वेरी गुड म्यूज़िक एंड वेरी गुड लोकेशन। आप हम लोगों ने शूटिंग किया है गैंगटॉक छांगू लेक में, जहाँ वो मैं तो थी डैडी के साथ, हम लोग एक बार फंस भी गए लैंडस्लाइड में, बहुत कुछ हंगामा हो गया था, और आर्मी लोगों ने हम लोग को बहुत हेल्प किया था शूटिंग के दौरान, एंड आई रियली सैल्यूट एंड थैंक, अ बिग थैंक यू टू द फौजी पीपल एंड द आर्मी पीपल देयर इन गैंगटॉक एंड सिक्किम, छांगू चाइना बॉर्डर में हम लोग शूटिंग कर रहे थे। तो ये गाना जो है दीवाना हूँ मैं तेरा, आप देखोगे ऐसा लगेगा आप स्विट्ज़रलैंड में हो, पर इट इज़ इंडिया, इट इज़ आवर इंडिया एंड वी आर सो प्राउड ऑफ इट। एकदम वाइट इसमें, जहाँ वो रोमांटिक गाना है, ब्यूटीफुल लोकेशन है, एंड शिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी, दादा का गाँव ही है वो, ही इज़ फ्रॉम शिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी। तो हम लोग ने पूरा वो टी बगान और जो चाय पत्ती का जो खेत है उसमें ही हम लोग ने शूटिंग किया था, सो बहुत मेमोरीज है। थैंक यू। दीवाना हूँ मैं तेरा, मेरी धड़कन पे पहरा तेरा, हो दीवाना हूँ मैं तेरा, मेरी धड़कन पे पहरा तेरा, चुन लिया है लाखों में जिसे आपकी वो सूरत है, मेरी धड़कनों की सनम तू पहली ज़रूरत है, हाँ हाँ हाँ। With Apache and thank you so much. With Apache and international masala, जो दादा was always, he's an international world famous man, so he always had that touch कि मेरे पिक्चरों में कुछ एक अलग सा एक हट के होना चाहिए for the Indian public, and he did it always. अभी SRG में एक नया फिल्म रेडी है, वो अभी सितंबर एंड में हम लोग रिलीज़ करने का प्लान कर रहे हैं, उसका नाम है हम तुम्हें चाहते हैं। उसके बाद एक अक्टूबर या नवंबर में फिर एक दूसरा फिल्म भी रेडी है, वो मराठी फिल्म है, उसका टाइटल है सुदागढ़ 07। वो एकदम एक्चुअल नेचुरल आर्टिस्ट के ऊपर डिपेंड है, दोनों ही अच्छी, वेरी इंटेलेक्चुअल मूवी, दैट इज आर्ट मूवी इसे बोलते हैं, फॉर फेस्टिवल्स और वो, दैट्स अ डिफरेंट। थैंक यू वेरी वेल, रेगो इज़ ओनली 13 ईयर ओल्ड, 13 साल का है, एंड उसका फर्स्ट एल्बम बच्चा पार्टी, एज यू नो, इज़ अ सारेगामा आर्टिस्ट, एंड ही गॉट ऑडिशन बाय द सारेगामा एंड चोज
with an album, and 5-6 million उसका first album में हुआ है, and he had a very good, people liked his singing, his swag and the way he sings, and of course the looks of his dada also he has, of his dadu, so he is doing well, he is still learning, अभी बहुत learn कर रहा है और करता रहता है मेहनत, and अभी ये हम तुम्हें चाहते हैं में he is done debut as a playback singer, आप देखोगे तो बहुत मज़ा आएगा, गाना एकदम entertaining है. The song is almost like बम्बई से है मेरा दोस्त, and it is shot very well. और ये एक इतिहास में है, मैं बोलना चाहती हूँ पूरे प्रेस को कि मीडिया को कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि दादा के म्यूज़िक में रेगो ने गाया है, मतलब ग्रैंडफादर के ट्यून में ग्रैंडसन ने गाया है. So that I think in the history होगा फिल्म इंडस्ट्री में कि ग्रैंडसन ने sang at so young, 13-year-old, he sang राजपाल यादव के ऊपर. इस कॉमेडी पूरा मसाला वाला गाना है, एंटरटेनमेंट गाना है, जनता गाना है, एकदम मस्त गाना है, बहुत ही उम्दा गाना है, उसने गाया भी बहुत अच्छा है. तो बस मैं चाहती हूँ कि आप लोग आशीर्वाद दें रेगो को और हम SRG फिल्म्स के सपोर्ट करें, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर एंटरटेनिंग पीपल और दादा का लेगेसी आगे लेके जाए और रेगो को आशीर्वाद दीजिए. अभी बहुत सीखना बाकी है, बहुत आगे जाना बाकी है, कर रहा है वो. लव स्टोरी दीवानों की रिलीज हो रही है, क्या उम्मीद है आपकी? वेल उम्मीद तो बहुत ही पॉजिटिव है क्योंकि मुझे अभी ऑलरेडी इतने फ़ोन कॉल्स आए दादा के फैंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, न्यूयॉर्क से भी कि वी आर मोस्ट अवेटेड फिल्म, वी वांट टू सी लव स्टोरी दीवानों की, क्योंकि फैंस तो सब जानते हैं ना कि ये पिक्चर रिलीज़ नहीं हुआ है, ऐसा हुआ है वैसा, दे नो एवरीथिंग अबाउट हिम. तो आई एम श्योर दैट पिक्चर अच्छा ही होगा एंड अच्छा चलेगा. एंड दादा के म्यूज़िक फैंस लोग जो है जो उनको रिस्पेक्ट करते प्यार करते दिल से, तो उनको उनके लिए है एक गिफ्ट है. जाते जाते भी एक गिफ्ट देके गए हैं और दिस इज़ जस्ट अ प्यार एंड रिस्पेक्ट फॉर आवर फादर. देयर इज़ नथिंग फॉर एनी बिजनेस और एनीथिंग, यू नो, वी डोंट नीड दैट. गॉड इज़ बीन वेरी काइंड टू हैव अ फादर. डैडी जैसे डैडी मिला है, भगवान है हमारे, खाली मंदिर छोड़ के चले गए हैं. पर द थिंग इज़ हम उम्मीद करते हैं कि सबको अच्छा लगेगा. उनकी आवाज़, उनकी एक मेमोरी, अगेन बैक टू दैट थिंग, यू नो व्हाट आई मीन. बहुत अच्छा म्यूजिकल, बहुत अच्छा है, वेरी गुड. फिल्म को किस तरह से रिलीज कर रहे हैं, कितने सिनेमा घर में, कहाँ अभी 150 सिनेमा में 150 वर्ल्ड उसके वाइड. बाद OTT वगैरह का या plan है उसके आपका? बाद OTT थोड़ी का. डिटेल में विस्तार में बताइए ना. उसका भी ऐसा कोई खास प्लान नहीं है. अभी 150 सिनेमा में अपन हिंदुस्तान में. और ओवरसीज ओवरसीज अभी प्लान चालू है, अभी किसी से कनेक्शन नहीं हुआ है. अभी वर्ल्ड वाइड रिलीजिंग का है, पर इंडिया में 150 थिएटर में अपन रिलीज़ कर रहे हैं अभी उसको. उसके बाद OTT प्लेटफॉर्म जो भी जैसे बात होगा रिलीजिंग के बाद. आपको नहीं लगता कि ये फिल्म थोड़ा बहुत ज़्यादा डिले हो गई है? डिले तो तो आज की जो ऑडियंस है इसको पूरी तरह से एक्सेप्ट कर पाएगी, क्योंकि पूरा ज़माना चेंज हो गया है कोविड के बाद से. तो इस पर आपको थोड़ा सा डर भी है कि सिर्फ इमोशंस के लिए आप लोग कोई डर release नहीं करना है, चाहते हैं? कोई डर नहीं है भाई. दादा का गाना कभी पुराना नहीं होता है. सही बात है. वो आप सुनेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा. और फाइनेंशियल कोई लेना देना नहीं है फिल्म से. हमारा एक ही मकसद है कि इस फिल्म को रिलीज करना है बस और लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि दादा ने बहुत अच्छा काम किया है इसमें. एक ही मकसद है इसमें. थैंक यू. You know, you always hear you talking about that. थोड़ा सा इधर आ. What would you like to say? Remembering Daru now. Releasing, which was his dream project. So this ये मूवी जो था ये दादू का मोस्ट अवेटेड फिल्म था. दादू हर समय कोविड का टाइम बोलते थे दैट ये रिलीज़ करो. दादू ये सेम दीवाना हूँ मैं तेरा और अपाची जी के गाने सब सुनाते थे हम लोग को और हम लोग को बहुत पसंद आया. तो हम लोग पूछते दादू कभी रिलीज़ कर, जल्दी रिलीज़ करो. एंड तो अभी फाइनल रिलीज़ हो रहा है एंड फाइनली द वेट इज़ ओवर एंड लेट्स होप दिस म्यूजिक रॉक्स, द फिल्म रॉक्स. आप उनकी मेमोरी में कौन सा गाना गाना चाहेंगे which has been his favorite maybe from this film? From this film, I think Deewana Ho Main Tera is The title song. The title song is the favorite. But today, what I want to sing is Dadu's most awaited song, Chalte Chalte. Please. और बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम मगर और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर हम लौट आएंगे
कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। Thank you so much. Thank you.